Hello and welcome to the Internet. The topic for today's discussion is very integral part of the personal laws relating to marriages in India. That is the restitution of conjugal rights. The topic holds great importance when it comes to the questions asked in various competitive exams, and all the more important as this is one of those matrimonial remedies which aims at preserving the institution of marriages, unlike the other remedies of divorce and judicial separation. Before moving ahead with the legal aspect of restitution of conjugal rights, it becomes important for us to understand that what exactly the term stands for. तो हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन होता क्या है. To understand this, we'll break the term into two parts. First, restitution, which means restoration of something. Second, conjugal rights, which are the rights arising out of matrimonial relations, यानी उन अधिकारों को वापस लाना या रिस्टोर करना जो कि वैवाहिक रिश्ते से मिलते हैं. Marriages and matrimonial relations entail with them certain marital rights and duties. One of the duty is to live together, यानी साथ रहने की एक ड्यूटी होती है. And this restitution of conjugal rights is the remedy against the wrong of desertion. अब समझते हैं कि आखिर desertion क्या होता है. So when someone leaves the company of the other spouse without any reasonable excuse, he or she is said to have committed the wrong of desertion. यानी जब एक हस्बैंड या वाइफ अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस को बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के छोड़ के चला जाता है, उस केस में डेजर्शन होता है और हम आरसीआर की डिग्री पास करवा सकते हैं उन्हें वापस लाने के लिए. Matrimonial relations in India have always been considered very sacred and sanctimonious. और क्योंकि इन्हें sacred यानी पवित्र माना जाता है, any legal and judicial interference in it is generally looked down upon. और यही एक वजह है जिसकी वजह से इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में आरसीआर का कोई जिक्र नहीं मिलता है, ना ही धर्मशास्त्र में ना ही मुस्लिम लॉ में. And it was introduced in India during the British Raj in the case of Munshi Bazlur Rahim versus Shamsunisa Begum. अब ये केस मुस्लिम मैरिज का है. हाँ, हम जानते हैं कि निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर शरिया लॉ. तो इस केस में आरसीआर की जो डिक्री है वो पास की गई थी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एज a specific performance. Initially, the remedy was only available in Islamic law, but eventually it got codified under various personal laws, like Section 9 of Hindu Marriage Act. Section 9 of Hindu Marriage Act talks about RCR. और वो कहता है कि when either the husband or the wife has without any reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for the restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there exists no legal ground why the application should not be granted, may pass a decree of restitution of conjugal rights accordingly. सिमिलर प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सेक्शन 36 ऑफ पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1969 एंड सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में भी पाए जाते हैं. अभी हमने देखा कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है. अब उसे सही से समझने के लिए हम उसे ब्रेक करेंगे पार्ट्स में और समझेंगे कि क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए आरसीआर की डिग्री पास करवाने के लिए. पहला है दैट द पेटिशनर शुड हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस, यानी वो अलग रहने लग जाएं और अबैंडन कर दें अपने स्पाउस को. दूसरा है कि विड्रॉल शुड बी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसे विड्रॉवल के लिए. अब सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस क्या होता है और रीजनेबल एक्सक्यूज में क्या क्या आ सकता है, इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट है द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड एज टू द ट्रूथ ऑफ द कंटेंशंस मेड इन द पेटिशन, यानी जब कोर्ट सेटिस्फाइड होगी कि जो चीज़ें पेटिशन में लिखी गई हैं वो वाकई सही हैं, तो सिर्फ उसी केस में आरसीआर की जो डिग्री है वो पास की जा सकेगी. फोर्थ है
कि there should exist no legal ground for such denial ऑफ पासिंग ऑफ सच डिक्री। यानी अगर कोई लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आपके केस में वो डिक्री पास ना की जा सके, तो ऊपर की कंडीशंस फुलफिल होने के बावजूद आरसीआर की जो डिक्री है वो पास नहीं की जाएगी। इसे हम समझते हैं केस की हेल्प से। रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल। इस केस में रंजना विनोद की सेकेंड वाइफ थी और उनकी पहली शादी के बाद विनोद ने उनसे छुपाई हुई थी। नाउ शी फाइल्ड द पिटीशन क्लेमिंग आरसीआर। तो कोर्ट ने कहा कि हिंदू पर्सनल लॉ में बाइगमी अलाउड नहीं है, यानी सेकेंड मैरिज डजंट सस्टेन इन द आइज ऑफ लॉ, और इस वजह से जब शादी ही नहीं सस्टेन करती है तो आरसीआर की डिक्री पास नहीं की जा सकेगी। मैरिज बीइंग वॉइड इन दिस केस was the legal ground for the denial of passing of the decree of RCR. अब हम वापस डिटेल में समझते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस क्या होता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ अलग रहने से आपका विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी नहीं हो जाता। सपोज़ आप दोनों अलग सिटीज़ में रह के जॉब करते हैं एंड रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहते हैं, तो उस केस में you are not completely withdrawing yourself from the society of the other spouse. The intention to abandon the spouse is very important. जब आप intentionally and voluntarily secede करते हैं खुद को from the society of the other spouse and आप नहीं जाना चाहते हैं वापस में, तब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ऑल्सो अगर आप साथ रह कर भी अगर अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करते हैं and you completely withdraw yourself from the sexual intimacy, in that case also the act would amount to desertion. Withdrawal from the society of other spouse को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या क्या चीज़ों जो हैं वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो सकती हैं। पहला है द केस ऑफ रीमैरिज, दैट इज़ व्हेन someone remarry somebody else। अगर कोई दूसरी शादी कर ले और इस वजह से आप उनसे अलग रहने लग जाएं, तो ये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होगा और आरसीआर की जो डिक्री है वो पास नहीं की जा सकेगी। हम इसे समझते हैं केस के हेल्प से। कोथार बीवी वर्सेस अमीनुद्दीन 2017। In this case, husband remarried during the pendency of the suit, and the court held that it would not be unreasonable for the wife to stay away from the husband if he remarries someone else, and it was justifiable for her to do so. The court recognized the fact that Muslims do have the right to contract the second marriage, but it would be inequitable to force the wife to live with the husband even when he has remarried someone else. Law in that regard has to be perceived in the way as to bring the conformity with the modern social conditions. यानी अगर हस्बैंड ने किसी और से शादी कर ली है और उस केस में हम वाइफ को फोर्स करते हैं कि नहीं आप जाइए और वापस रहिए, दैट वुड बी वेरी अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल एंड वेरी इनइक्विटेबल फॉर देम टू डू सो। दूसरी कंडीशन है when it is impossible to live with the spouse. If there is any cruelty rendering it unsafe to live with the spouse, the court would not pass the decree of RCR to send the deserting spouse back. यानी अगर कोई खतरा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम आरसीआर की डिक्री नहीं क्लेम कर सकते हैं, एंड एनी सच थ्रेट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज रीजनेबल एक्सक्यूज। Also, if there is any gross violation of the performance of the obligations that the contract of marriage is imposed, the decree of RCR cannot be passed, and that there would lie a reasonable excuse for the desertion of the spouse. इसके अलावा जितने भी grounds हैं for divorce, they would also constitute as reasonable excuse for leaving the society of the spouse. By now we understand what RCR is, what the society of the spouse is, what constitutes as reasonable excuses. It is now important for us to trace the journey of constitutionality of RCR. The constitutionality of RCR was first time challenged in the case of T. Sarita versus T. Venkat Subbiah in the year 1983. In this case, T. Sarita challenged the constitutionality of Section 9 of Hindu Marriage Act
on the grounds that it violates Article 14, which is right to equality, and Article 21 since it is gross violation of privacy. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में कॉन्जुगल राइट्स को डिफाइन करते हुए कहा कि कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है सेक्सुअल इंटिमेसी. द नैरो मीनिंग एज गिवन बाय द कोर्ट, it was held that the passing of the decree of RCR with such narrow meaning would be unconstitutional since it is a stark violation of bodily privacy of the women. इसके बाद अगेन दिल्ली हाई कोर्ट में सिमिलर पिटीशन फाइल हुई इन द केस ऑफ हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेम रीजनिंग के साथ में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया. फाइनली सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया और पिछले दोनों केसेस की रीजनिंग को जो है वो ओवररूल किया. एपेक्स कोर्ट ने कहा कि कॉन्जुगल राइट्स को इतने नैरो मीनिंग के साथ में नहीं देखा जा सकता. उन्होंने इसको ब्रॉड मीनिंग दिया और कहा कि इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, बल्कि कॉन्जुगल राइट्स कोहैबिटेशन जो कि सेक्सुअल इंटीमेसी को इंडिकेट करता है, और कंसोर्शियम यानी इमोशनल कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस, दोनों को मिला के बनता है. और क्योंकि कॉन्जुगल राइट्स सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी को इंडिकेट नहीं करते हैं, इसलिए सेक्शन 9 वुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस द प्रोविजन वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल. फाइनली हम करंट जूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं कि क्या है आरसीआर की. इन करंट जूरिस्प्रूडेंस कॉन्जुगल राइट्स में कोहैबिटेशन यानी सेक्सुअल इंटीमेसी एंड कंसोर्शियम यानी इमोशनल कंपनी दोनों ही आते हैं. Also, the very interesting fact is that this is also used as gate pass for divorce. Section 13(1)(a) clause 2 provides that after RCR, if there is no resumption of cohabitation within 1 year, either party can file the divorce. आई होप इस वीडियो के बाद में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और फॉर एनी फर्दर क्वेरी, ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.